Yeah, hello everyone. Welcome to Apnaro channel. So now we will discuss that how you can prepare for NIELIT Scientist B and STA exam 2024. Okay, already I made the notification video. As you already know, that form is reopened. So if you didn't fill the form or if you missed last time in the July month, then again it is chance to fill the form, and form last date is 30th of December. That is tomorrow. Okay, tomorrow is form last date. सो क्विकली जस्ट फिल द फॉर्म प्रॉपरली फॉर बोथ दी पोस्ट. ठीक है, बोथ पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, एक पोस्ट का मत भरो. अगर आप फ्रेशर हो तो, अगर एक्सपीरियंस हो तो यस यू कैन गो फॉर साइंटिस्ट भी, बट इफ यू आर फ्रेशर अप्लाई फॉर बोथ दी पोजिशन. ठीक है, so in this video we will discuss that how you can prepare. Okay, what is the syllabus, what is the exam pattern, all the things which are important for your preparation we will discuss. So let's start it. Okay, before going to our strategy, this MS NIELIT exam is a part of MSP, that is Master Pack. Okay, so in the comment section you will get the link of Master Pack Electronics and Master Pack Computer Science, so you can join if you are seriously preparing for both NIELIT Scientist B and NIELIT STA post. Now quickly come to exam pattern. Now see, till date there is no update from NIELIT. Okay, they may change the pattern, but for now tentative you can consider that you will get aptitude reasoning, okay, for 60 questions, and technical you will get 60 questions, total 120 questions you will get. And to solve these 120 questions you will get 90 minutes. Okay, negative marking is there and there is no sectional cutoff, so there is no problem. Okay, so this is the basic exam pattern of your NIELIT recruitment. If there are any changes then definitely I will update you, no need to worry. Just make sure you will join our Telegram channel and WhatsApp group. ठीक है, Telegram and WhatsApp group join करके रखो ताकि जल्दी से जल्दी आपके पास अपडेट पहुंच सके. Okay, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद नॉन टेक्निकल विच इज कॉमन फॉर बोथ कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन गाइड्स. सो कॉन्ट आपको पढ़ना है, एप्टीट्यूड पढ़ना है, और क्या क्या चैप्टर से इसमें तो आपके सामने जो है पूरा लिस्ट है. ठीक है, तो टोटल 17 और अप्रोक्सीमेटली 15 चैप्टर से इधर में 3 कंबाइन कर लिए हैं, तो ये आपको पढ़ना है. ठीक है, दिस यू टू स्टडी फॉर योर कॉन्ट और एप्टीट्यूड सेक्शन. नाउ फॉर स्टडी यू कैन यूज एनी बुक. ओके, आई विल रिकमेंड यू टू यूज आर एस अग्रवाल, बहुत अच्छा बुक है, वो यूज कर सकते हो. ओके, बाकी जो एमएसपी में आपको एक्स्ट्रा कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपना ब्लॉक वाइज स्ट्रेटजी चालू है, अभी ब्लॉक 2 में हम है. ठीक है, तो वही आपको फॉलो करना है जो सा चल रहा है. ठीक है, सो जस्ट फॉलो ब्लॉक वाइज स्ट्रेटजी फॉर दैट. हाँ, टेलीग्राम पीडीएफ ऑल्सो ऑप्शनल इफ यू मीन्स वांट मोर प्रैक्टिस देन यू कैन जस्ट practice telegram pdfs. ठीक है, and for exam practice our mock test and block wise strategy is enough, so that's it. Next is reasoning. So for reasoning you can see syllabus in front of you. Okay, again the references will be same, there is no much changes in that. Okay, now you will ask me what level I can expect for non technical part. So see, it is not like they will ask you moderate question. Okay, the questions will be easy to moderate only because you know time is less. Okay, I am going with द एग्जाम पैटर्न दैट आई शोड यू, राइट. सो उससे हम जा रहे हैं, तो टाइम कम है इसलिए इजी टू मॉडरेट रहेगा, तो ज़्यादा इसमें डिटेल में और लेंथी क्वेश्चंस नहीं होंगे. डेफिनेटली कुछ ना कुछ होंगे ही, ऐसा नहीं कुछ नहीं होगा, बट यू कैन मैनेज टू सॉल्व वॉट एवर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. ठीक है, ओके. सो नाउ फर्स्ट आई विल डिस्कस फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड देन आई विल गो फॉर कंप्यूटर साइंस. तो अभी तक सी ऑफिशियल सिलेबस इज नॉट देयर. ओके, सो जस्ट बाय कंसिडरिंग दिस सिलेबस स्टार्ट योर प्रिपरेशन बिकॉज ऑब्वियसली 70-80% सिलेबस विल बी देयर फ्रॉम दिस ओनली. ठीक है, 70-80% यही रहेगा, थोड़ा बहुत उनको ऐड करना है तो 20-30% ऐड होगा. ठीक है, तो वो टेंशन मत लो, अभी इससे स्टार्ट करो क्विकली जो है अपना प्रिपरेशन. तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है. ठीक है, बाद में नेटवर्क थ्योरी एंड सिग्नल सिस्टम इज देयर. देन द थर्ड सब्जेक्ट इज योर कंट्रोल सिस्टम्स, देन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ओके, एनालॉग सर्किट्स, डिजिटल सर्किट, communication and electronic theory. So for now just 8 subject you can study. Now those who are repeater, those who already complete this subject, you can take additional subject of measurement. ठीक है, ले सकते हो अगर मतलब ऑफिशियली वो डालेंगे सिलेबस में, सो यू टू कवर. सो अभी से आप थोड़ा बहुत बेसिक्स कर सकते हो. ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा अभी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, जितना है उतना ही करो. ठीक है, इफ देयर इज एनी अपडेट डेफिनेटली आई विल नोटिफाई यू, नो नीड टू वरी फॉर दैट. एंड नाउ मेक श्योर कि आप एक एक चैप्टर जब ये कंप्लीट करोगे, एक एक सब्जेक्ट जब ये कंप्लीट करोगे, सो यू विल सॉल्व गेट 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चन. So those who are already in MSP, already I included in everything in your blockwise strategy. ठीक है, no need to refer separating. For practice purpose, solve get 1 and 2 mark question and then after that mock test will be there. ठीक है, so mock test से आप अपना preparation final कर सकते हो. ठीक है, okay. Now for computer science, you can see syllabus in front of you. Now see from NIELIT there is no official update of about syllabus, but जब तक नहीं आता तब तक you will consider this syllabus only. ठीक है, so that you can start your preparation. So engineering mathematics is there, then digital logics is there, then you can see COA, okay, then algorithm programming data structure, theory of computation, compiler, operating system, database and computer network. So this is the syllabus for you can consider for your कंप्यूटर साइंस पेपर फॉर बोथ साइंटिस्ट भी एंड एसटीए. इसमें वो कुछ थोड़ा बहुत ऐड होगा, तो वेब टेक्नोलॉजी ऐड होगा, साइबर सिक्योरिटी ऐड होगा, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ऐड होगा. ठीक है, हुआ तो, अगर हुआ तो मैं आपके अपडेट करूंगा ही आपको. तब तक फॉलो दिस सिलेबस. ठीक है, and after completion of each and every subject just practice gate 1 mark and 2 mark question. And those who are already in MSP, already everything is there in your blockwise strategy, no need to worry for that. उसके बाद जो फाइनल मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट देना है दोनों का और फिर पेपर जाना है. ठीक है, ओके. नाउ बिगेस्ट क्वेश्चन कि एग्जाम डेट कब एक्सपेक्ट कर सकते हो. ऑलरेडी ये रिक्रूटमेंट को लगभग 8 महीना हो गया है. ठीक है, तो सी अभी मेन क्या है, आगे जो जितने भी आपको टाइम मिलने वाला है, क्विकली दे विल कंडक्ट द एग्जाम. अभी ज़्यादा आपको फिर से एक साल नहीं देंगे प्रिपरेशन के लिए. ठीक है, सो मेन थिंग इज दैट इन द फेब्रुआरी लास्ट वीक और मार्च फर्स्ट वीक
ठीक है, तो ये टारगेट लेके चलना है आपका। तो इधर आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर कुछ भी अपडेट आता है डेफिनेटली आई विल नोटिफाई यू, ठीक है। थोड़ा बहुत इलेक्शन की वजह से अगर आगे जाता है तो मैं नोटिफाई करता रहूँगा। मेन क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो, और फॉर्म भरना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, राइट। तो फेब्रुआरी लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग 2 महीना अभी फिर से वो देंगे। तो इसमें ही आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो मैंने दिखाया है और जो वो देंगे वो कंप्लीट करना है, ठीक है।